Hello students, today I am here with another video on your book Flamingo, and today's topic is poem number 3, Keeping Quiet by Pablo Neruda. But before we begin the poem, let me remind you of the 3 essentials for keeping yourself safe in this era. And the 3 things which you must have heard in the FM, or you watch on the TV, or you read in the newspapers are that you have to wear a mask when you go out. Whenever you go out to meet your friends and relatives also, don't put out the mask. You have to wear it in every case. And then you have to wash your hands for 20 seconds with a soap, or when you go out you should keep a sanitizer with you. So these are the things. You should stay safe, because the cases of corona are rising day by day in Delhi, and you must have heard the videos from the doctors or the information released by them that now there is a scarcity of beds also in the hospital. They are not admitting. So please stay safe with your family and friends. So now about the poem. The poet is Pablo Neruda. He was born in Chile, and the years are 1904 he was born, and he died in 1973. He was a poet, diplomat, a politician, and he won the Nobel Prize in Literature in the year 1971. And the important thing about him is that he writes in a very easy language, and that does not decrease the beauty of writing poems. You understand it, you enjoy it. So keeping quiet, as the title of the poem suggests, that we should keep still. We should maintain silence. We should do quiet introspection. Quiet introspection means self-analysis. Introspection मतलब analysis. हमें अपना analysis करना है कि हमें क्या ज़रूरी है हमारे लिए, क्या नहीं है. We should maintain peace and brotherhood. Feeling of brotherhood. Brotherhood मतलब होता है बेटा भाईचारा. हमें भाईचारा मेंटेन करना है. वी शुड नॉट फाइट विद एनीवन. किसी से भी हमें माइंडलेसली लड़ाई नहीं करनी है कि हम क्यों लड़ें किसी के साथ. हमको इस चीज़ को देखना है. देन हार्मनी, पीस एंड हार्मनी. हमें शांति बनाए रखना है. हमारा काम वर्ड में आके यही होना चाहिए कि हमें शांति बनाए रखनी है. And we should have mutual understanding. We should show love and respect to our neighbors, to all human beings. ये जो पोएम पैब्लो नेरूडा ने लिखी है, कीपिंग क्वाइट, बेटा ये सिर्फ एक सिनारियो में उनकी कंट्री में ही इस चीज़ को हम जस्टिफाई नहीं करते. ये पूरे ग्लोब में ये चीज़ बिल्कुल सच है कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से बनानी है. क्योंकि अगर हम माइंडलेसली वॉर्स में एंगेज हो जाएंगे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा. So today I am going to explain the poem line by line to you. Now we will count to 12 and we will all keep still. The poet is saying, now we will, हम लोग, it means the readers and the poet, both we will count to 12. हम 12 तक गिनती गिनेंगे and we will all keep still. और जब तक हम 12 तक गिनती गिनेंगे सब लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे पोएट ने 12 ही क्यों लिखा है? वाई ही डिड नॉट राइट 11 और 13? तो बेटा ये जो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन द CBSE एग्जामिनेशंस, और यहाँ पे हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्यों पोएट ने 12 लिखा है? पोएट ने 12 इसलिए लिखा है टू इनिशिएट मेडिटेशन. हम किसी भी काम को शुरू करते हैं, वेन एवर वी आस्क यू टू मेक ग्रुप्स इन द क्लास, और वी आस्क यू टू स्टार्ट इन एक्टिविटी, हम कहते हैं ओके 1 2 3 4 स्टार्ट नाउ. सो वी गिव यू अ टाइम. यहाँ वो उसने 12 इसलिए लिखा है बिकॉज यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर 12 डिजिट्स इन अ क्लॉक, और वो एक 12 आवर्स की साइकिल को पूरा करता है, और फिर वो रिपीट होती है साइकिल, और इस तरह से 24 आवर्स बन जाते हैं. 12 करके वो 24 आवर्स बनते हैं. So there are 12 digits in a clock. Secondly, you must have seen that there are 12 months in a calendar year. तो पोएट हमें इस बात को जस्टिफाई करना चाहते हैं
कि थ्रू आउट द ईयर वी शुड थिंक अबाउट दिस थिंग्स एंड कीप स्टिल, और हमें चुप रहना चाहिए। स्टिल मतलब हमें कोई काम नहीं करनी चाहिए, हमें बिल्कुल शांति से आप बैठिए, क्योंकि शांति से बैठना भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना। We should have time for self introspection and this is really necessary। जो भी काम हम कर रहे हैं, जब तक हम उस चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, कई बार क्या होता है माइंडलेसली करे जा रहे हैं। ठीक है, आप आ रहे हैं स्कूल में, आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको दिलवा दिया साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स, और आप करे जा रहे हैं उसको, पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आफ्टर 12th मैं क्यों कर रहा हूँ। मे बी यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन सम अदर थिंग, तो आपको वो चीज़ गोल दिमाग में रखना चाहिए किसी भी काम के लिए। तो सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम कब कर सकते हैं, जब हम चुप रह के कोई काम करेंगे। अगर हम चुप हैं तभी हम अपने बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट। गिव इम्पॉर्टेंस टू योर सेल्फ ऑल्सो, थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। जैसे आपको कोई भी अगर बोला जाए किसी भी काम को करने के लिए कि जैसे व्हाट डज योर मदर लाइक, तो आप फ़ौरन बता देते हैं कि हाँ मेरी मदर को ये ईटेबल्स में ये चीज़ पसंद है, मेरी मदर को ये वाला कलर बहुत पसंद है। और इफ़ यू आस्क यू अबाउट योर फ्रेंड देन यू टेल अबाउट फ्रेंड कि मैम इसको ये फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसको ये अच्छा लगता है। बट व्हेन वी आस्क यू ओके टेल अस व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, देन यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपने अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। हमारी क्या आदत होती है, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अदर्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट आवर सेल्फ कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमें क्यों वो चीज़ चाहिए। हम अपने बारे में एनालिसिस नहीं करते। तो पोएट ये कह रहे हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, आप लोग अपने मन में 12 तक काउंट करिए और मैं 12 तक काउंट करूँगा, और तब तक सब लोगों को स्टिल हो जाना है, बिल्कुल शांत बैठ जाना है। आई होप दीज 2 lines are clear. Now, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. For once कहते हैं एक बार, for once on the face of the earth, जैसा कि दिखाई दे रहा है। face of the earth मतलब we all are living on this earth। तो पहली बार इस अर्थ पर let's not speak in any language. We will not speak in any language, either the language is verbal or non-verbal. अपने एक्शन से और बोल के हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की लैंग्वेज हो, वर्बल हो नॉन वर्बल हो, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 second, 1 मिनट के लिए हमें स्टॉप करना होगा। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम जो अपने हाथ हिलाते हैं हमें ये भी नहीं करना है। हाथ आर्म से क्या मतलब है बेटा, we are not going to indulge in any physical activity, because the moment we move our arms it means something is going on. If you go to the factories, आप देखेंगे कि सब लोग हाथ से काम करने में लगे हुए हैं। कुछ भी काम जो वो कर रहे हैं, हमें हर काम को रोक देना है। Let's not move our arms so much. आर्म्स का मैंने भी आपको बताया, हैंड से भी यहाँ पर हो सकता है, और आर्म्स यहाँ पे वेपन से भी ले सकते हैं, हथियार से भी ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अब वी आर नॉट टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज एंड वी शुड नॉट मूव आवर आर्म्स ऑल्सो। तो फिजिकली वट एवर एक्शंस आर बीइंग डन वी शुड स्टॉप देम फॉर अ सेकेंड। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, एग्जॉटिक स्ट्रेंज, बिल्कुल स्ट्रेंज मोमेंट होगा। आप देखिए अगर बिल्कुल शोर मच रहा होता है कि बहुत बच्चे शोर मचा रहे हैं, अचानक ही प्रिंसिपल आते हैं रूम में एंड एवरीबडी गेट्स साइलेंस, तो वो स्ट्रेंज साइलेंस होती है, एग्जॉटिक। नोबडी इज मूविंग, कोई हिल भी नहीं रहा है, कोई बोल भी नहीं रहा है, बिकॉज आपको डर होता है कि कहीं सर हमसे ही कुछ ना पूछ लें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, जब पूरे वर्ल्ड में काम रुक जाएगा 1 सेकेंड के लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम बिल्कुल चुप हैं, तो वो स्ट्रेंज मोमेंट होगा हमारे लिए। ऐसा मोमेंट हमको चेरिश करना चाहिए, ऐसे मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए, ऐसे मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आते ही नहीं हैं। हर समय कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश मतलब विदाउट एनी क्राउड, बिकॉज वी आर रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। कोई कहीं जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है।
साइलेंस मेंटेन करनी है। विदाउट इंजन्स, कोई भी इंजन भी नहीं चलेगा। इंजन मतलब फैक्ट्री में भी सारे काम बंद हो जाएंगे, सड़कों पे सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, इंजन भी कोई काम नहीं करेगा। इसका मतलब कंप्लीट साइलेंस होगी वहाँ पर, विदाउट एनी नॉइज़, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब सारे काम रुक जाएंगे तो हमें ये फीलिंग आएगी, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी आर वन, वी आर सिटिंग देयर एंड एवरीबडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ये सडन स्ट्रेंजनेस होगी, बहुत अजीब सी एक सिचुएशन होगी जिसको कि हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई इंजन नहीं चल रहा है, कोई कहीं भाग नहीं रहा है। वो कह रहे हैं फॉर 1 सेकेंड प्लीज़ मेंटेन दिस स्ट्रेंजनेस, क्योंकि एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा और हम सबको इस एग्जॉटिक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। एक सडन, एक अचानक स्ट्रेंजनेस होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन का क्या काम होता है बेटा? दे कैच द फिशेस। अपने ट्रैप में, अपने नेट में वो फिशेस को पकड़ लेते हैं। तो कह रहे हैं, और इसको देखिए, ये लिटरल मीनिंग है, जो लिखा है उसको मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है कि वो ये चीज़ है कि कोल्ड सी में फिशरमैन किसी भी फिश को नहीं पकड़ेंगे। बट यहाँ का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? दैट वी शुड नॉट हार्म द एक्वेटिक एनिमल्स, कि हमें पानी में रहने वाले जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको हमें किसी भी तरह से हार्म नहीं करना है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। व्हेल्स को उनको नहीं पकड़ेंगे, फिशरमैन कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस समय पे बिल्कुल चुप हैं और काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कोल्ड सी बेटा आप देखेंगे, दिस इज ए ट्रांसफर्ड एपिथेट। सी के लिए कोल्ड लिखा है, बट एक्चुअली ये कोल्डनेस है फिशरमैन। फिशरमैन इतने कोल्ड एटीट्यूड से, इतने इंडिफरेंट एटीट्यूड से, इतना वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो व्हेल्स को हार्म कर रहे हैं। एक कोई एग्जिस्टेंस प्रिवेल करनी चाहिए ह्यूमंस और एनिमल्स की, पर हम क्या करते हैं, माइंडलेसली व्हेल्स को पकड़े चले जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। तो कह रहे हैं फिशरमैन को ये नहीं करना चाहिए। एक कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए कि दोनों ही रहें। क्या ज़रूरत है कि किसी भी एनिमल को हम पकड़ के मारें? तो कोल्ड यहाँ पे फिशरमैन के लिए भी यूज़ हुआ है कि लाउस एटीट्यूड, नॉट थिंकिंग। कोल्ड क्या होता है? जैसे कोई हॉट चीज़ को बेटा आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ हमेशा उस चीज़ को देखेंगे कि आपको महसूस होता है, यू फील समथिंग, आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं। पर कोल्डनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आपका हाथ बिल्कुल नम हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है, आप कुछ महसूस ही नहीं कर पाते अपने हाथ के ऊपर। वो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि वट एवर इज़ हैपनिंग, द आर्म और द फिंगर्स आर नॉट एक्सपीरियंसिंग इट। आप जब विंटर्स में आते हो एंड इट्स वेरी कोल्ड और टेम्परेचर आप देखते हो 2 or 3 डिग्री है, और इफ़ यू गो टू हिल स्टेशंस तो आप क्या देखते हैं, आप इस तरीके से करके अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, ताकि वो हॉट हो और आप कुछ लिख सकें, कुछ काम कर सकें। आपके हाथों में आपको लाइफ महसूस होती है व्हेन यू स्टार्ट रबिंग इट। तो यहाँ पे कोल्ड, फिशरमैन का कोल्ड एटीट्यूड है, इनडिफरेंट है, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये मेटाफर भी है और एक ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, क्योंकि ट्रांसफर करा गया है कोल्ड सी फिशरमैन से। सी के लिए ज़रूरी नहीं कि सी इज़ ऑलवेज कोल्ड। इफ़ यू टच द वाटर ऑफ द सी, अगर आप जाएं और बीच पे पानी तो इतना ठंडा नहीं होता, पर यहाँ पे कोल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि फिशरमैन का एटीट्यूड कोल्ड है। व्हेल्स के लिए, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स को बोला जाता है बेटा एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स को ये हार्म कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हमें देखना है कि फिशरमैन ये काम ना करें। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट, अब क्या होता है, सी के किनारे लोग जो हैं वो रॉक्स होते हैं, सॉल्ट है उसको गैदर कर रहे हैं, ठीक है, नमक उठा रहे हैं, वहाँ से नमक बनता है ना लहरों से आकर, तो वहाँ पे वो उठा रहे हैं नमक को, और उनके हाथ बिल्कुल हर्ट हो गए, हाथों में बहुत पेन है, हाथों में इंजरी है, पर वो काम करे चले जा रहे हैं माइंडलेसली। दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ। वो लेबर करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, मजदूरी करे जा रहे हैं,
उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने हर्ट हैंड्स को देखें कि हमें भी ज़रूरत है, वी शुड ऑल्सो गिव अटेंशन टू आवर हेल्थ। वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अगेन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। और जो प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रीन वॉर्स, वॉर की तैयारी में जो सोल्जर्स लगे हुए हैं, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स क्या होता है? वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट। दो चीज़ें हैं। अगेन मैं आपको कई बार बताती हूँ कि जो पोएट ने लिखा है उन्होंने किस माइंडसेट में लिखा होगा ये उनको पता है, बट द रीडर्स व्हेन दे रीड द पोएम दे एनालाइज इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। वो उस चीज़ को देखते हैं। अब सब्जेक्टिव हो जाती है वो चीज़ कि भाई हमने तो पोएम पढ़ के ये चीज़ समझी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ग्रीन वॉर्स, ग्रीन क्या होता है? फ्रेश, एक फ्रेशनेस की भी सिंबल होता है ग्रीन, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जब भी हम वॉर्स करते हैं हम एनवायरनमेंट को हमेशा, एनवायरनमेंट इज ऑलवेज थ्रेटेंड व्हेन वी इंडल्ज इन वॉर्स। हमेशा पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचता ही है, पर साथ में आप देखिए कहीं पर भी हम बॉम्ब्स को टेस्ट भी करते हैं तो आसपास के सारे एरिया बिल्कुल बर्बाद हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए हमेशा नो मैंस लैंड में इसको करा जाता है। जो जगह इतनी खाली होती है जहाँ पे हम ट्राई करे जाते हैं कुछ भी बॉम्ब्स, तो उसको हम देख सकते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। किसी भी तरह की वॉर, चाहे वो गैस से हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब हो, चाहे एटॉमिक बॉम्ब हो, चाहे कोई भी न्यू मेथड्स हों वॉर के, चाहे फायर से रिलेटेड वॉर हो, हम जो भी इस वॉर को प्रिपेयर करते हैं, जो भी इन कामों को कर रहे हैं सोल्जर्स, किसी भी तरह की वॉर हो, चाहे ग्रीन वॉर हो, फ्रेश मेथड्स ऑफ वॉर हो, या एनवायरनमेंट को थ्रेटन करने वाली वॉर हो, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, कोई भी बॉम्ब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो, एटॉमिक बॉम्ब हो, किसी भी तरह की वॉर हो, उसके बाद क्या होता है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जीत तो जाते हैं पर देयर इज नोबडी टू सेलिब्रेट इट, क्योंकि नो सर्वाइवर्स, बचता ही कोई नहीं है आफ्टर द वॉर। इतनी ज़्यादा जो कैजुअलिटी होती है कि आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। You have won the war, but the dead bodies are lying here and there. तो आप किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? No survivors, कोई है ही नहीं सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप अगर इंडियन सिनेरियो को देखें तो आपने देखा होगा जो किंग अशोक थे, उन्होंने आफ्टर द कलिंगा वॉर, वो उसके बाद में ही वेंट इनटू द रिफ्यूज ऑफ गौतम बुद्धा। उन्होंने कहा क्या मुझे मिला, मैं जीत गया, बट आई डिड नॉट गेट एनीथिंग। ऐसी जीत का क्या फायदा? द विक्ट्री विच इज कवर्ड विद द ब्लड ऑफ अनदर पीपल, जो खून से रंगे हुए हाथ हैं, आप उसको क्या सेलिब्रेट करेंगे? बिकॉज यू हैव टेकन द लाइफ्स ऑफ सो मेनी पीपल। जो मैं आपको शुरू में बता रही थी, थीम क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये पोएट इन बातों को इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं इस पोएम में। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स मतलब जो लोग बचते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और वो क्या कह रहे हैं सोल्जर्स को? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनो। साफ कपड़ों का क्या मतलब है? समथिंग अदर देन योर यूनिफॉर्म। क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उस यूनिफॉर्म पे ब्लड के स्पॉट्स होते हैं और वो ब्लड दूसरों का होता है। बिकॉज यू हैव इंडल्ज्ड इन वॉर माइंडलेसली। कुछ भी हासिल नहीं होता लड़ाई से। किस चीज़ से हासिल होता है? कि हम अपने आप को एनालाइज करें, चुपचाप बैठें, पीस की, लव की, रिस्पेक्ट की बात करें, देन वी कैन रीच अ सॉल्यूशन, देन वी कैन रीच अ रिजल्ट, देन वी कैन रीच अ कंक्लूजन, बट नॉट थ्रू वॉर्स। तो वो कह रहे हैं सोल्जर्स क्लीन क्लोथ्स पहने। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है बिल्कुल किसी भी एनिमिटी को भुला के साफ कपड़े पहने। और क्लीन से यहाँ पर क्या है? क्लोथ्स तो हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म मत पहनिए, इसके साथ ये है कि हमें अपनी सोल, माइंड एंड बॉडी को भी क्लीन रखना है। उसमें कोई भी डर्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं है, किसी भी गंदगी की गुंजाइश नहीं है। वी शुड ऑल बी पॉजिटिव, हमें नेगेटिविटी रखनी ही नहीं है।
हमें किसी के साथ एनिमिटी रखनी नहीं है, हमें जेलसी नहीं रखनी है, हमें ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं रखना है किसी के लिए। तो वो कह रहे हैं वॉक अबाउट इट देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स ही तो हैं जिनके लिए जिनके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों ब्रदर्स हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, शेड का मतलब है छाया, और छाया हमेशा क्या देती है हमें? पीस, मेंटल पीस, सुकून देती है। वी आर रिलीव्ड ऑफ द स्कॉचिंग सन। तो वो कहते हैं हम शेड में चलें, वो भी ब्रदर्स सोल्जर्स हैं, वो भी कुछ ना करें। डूइंग नथिंग मतलब किसी भी तरह की कोई वॉर नहीं करें। और नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं what I want should not be confused with total inactivity, that whatever I am saying in the above stanzas we should not confuse it with total inactivity। वो कह रहे हैं मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना काम करें, प्रोडक्टिविटी साइलेंट भी होती है, हम चुप रह के ये सारे काम रह के भी कर सकते हैं, बिकॉज द माइंड इज वर्किंग। आप क्या कर सकते हैं? फिजिकली यू कैन आस्क एनीबडी टू सिट डाउन एंड नॉट डू एनीथिंग, नॉट मूव योर आर्म्स, नॉट इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स, बट द माइंड इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। आप किसी की माइंड को स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं जो भी मैं कह रहा हूँ इसको कन्फ्यूजन मत लाइए कि सब चुपचाप बैठ जाएं और सब काम होता रहेगा। कहते हैं माइंड में टोटल इनएक्टिविटी से मत करिए उसको कंफ्यूज। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ हमारी क्या है? जो चल रही है। लाइफ कॉन्टिन्यूस है, चल रही है हमारी लाइफ, बिकॉज द मोमेंट द लाइफ एंड्स वी आर डेड। तो कह रहे हैं हमें डेथ के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये बिल्कुल डेथ जैसा माहौल ले आइए, क्योंकि डेथ में क्या होता है? बोथ माइंड एंड बॉडी आर नॉट वर्किंग। बट हेयर ही इज सेइंग दैट आप टोटल इनएक्टिविटी से मत, आप फिजिकली काम मत करिए कोई भी, पर माइंड तो काम करेगा। माइंड तो पॉजिटिविटी को सोचेगा कि हाँ मैं ये जो सारे काम कर रहा हूँ, वेयर आई एम रीचिंग टू, मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक मतलब नो कॉलिजन। ट्रक का मतलब है कि हमें बिल्कुल डेथ के साथ इस चीज़ को कंफ्यूज करना ही नहीं है। if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So poet is saying, if we were not so single-minded, अब आप देखेंगे हम single-minded हैं काम करने में। हम मॉर्निंग में उठते हैं जस्ट लाइक ए मशीन। यू आर स्टूडेंट्स, जब आप स्कूल आते हैं तो आप क्या करते हैं? माइंडलेसली, आपको पता है कि अलार्म आपने लगा दिया ऑफ 6 o'clock, आप उठ रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उसके बाद यू आर वियरिंग ए यूनिफॉर्म, यू आर कैरिंग अ बैग एंड कमिंग टू द स्कूल, स्टडिंग, फिर उसके बाद आपका लंच ब्रेक होता है, देन अगेन स्टडिंग एंड गोइंग बैक, और आप यही सारे काम करते चले जा रहे हैं। सिंगल माइंडेड है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट ऐसा कर रहा है। इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑल आर डूइंग द सेम थिंग। जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी है, वी आर डूइंग आवर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड वी आर वर्किंग इन द स्कूल, सब लोग वही काम कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट आई एम कुकिंग फूड इन द होम, एवरीबडी इज कुकिंग इन फूड। तो हम सिंगल माइंडेड होकर सारे काम करते चले जा रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, रूटीन वर्क है हमारा, हम उस रूटीन में काम करते चले जा रहे हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और इसी तरह से हमारी लाइफ मूव करती है। जितने भी ऑफिस गोअर्स हैं, मॉर्निंग में अपना तैयार होकर 9 बजे ऑफिस में चले गए, वहाँ पे काम करा, छुट्टी हुई, घर आ गए, और उसके बाद में अगेन अगले दिन दे स्टार्ट फॉर देयर वर्क। तो ये लाइफ मूविंग के लिए हम सिंगल माइंडेड हैं, सब लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग, पर एक बार आप कुछ मत करिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, बिकॉज जब तक हमारे हाथ चल रहे हैं हम अपने बारे में सोच ही नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक, जिस काम में हम लगे हम वही कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्स एट दैट टाइम। When I am cooking the food or when I am going to the market to purchase dresses or vegetables, I am thinking about that only. I am not thinking about myself.
और रूटीन में क्या है, हम सारी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बट वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आवर ओन बीइंग। हम अपनी पर्सनैलिटी, अपने पर्सोना की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार कुछ मत करिए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। और जब हम सारे ही ये काम करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, तो ह्यूज साइलेंस होगी, बहुत बड़ी साइलेंस होगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो जिस सैडनेस में हम काम कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम अपने गोल, हमें पता नहीं, वी फॉरगेट आवर गोल्स। हम कितने भी काम होते हैं इस तरह से करते हैं, ओके लेट्स डू, विल सी व्हाट हैपेंस, देखा जाएगा कि क्या होगा। जैसे मैं आपको कोरोना के बारे में बता रही थी ना, कि आप कोरोना, आप सोचते हो कि कोई बात नहीं भाई, दिवाली है, देखा जाएगा, हो गया कोरोना तो देखा जाएगा। तो देखा जाएगा वाली बात नहीं है, हमें ध्यान रखना है, हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखना है कि क्या होगा हमारे साथ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और जब हम इस सोचेंगे, तो जो ये सैडनेस है हमारी, जो मंडेन एक्टिविटीज़ हैं, जो बोरिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम। आपके इफ यू मस्ट हैव रेड अ लेसन इन योर 9th क्लास, जिसमें वो टाइगर आ जाता है वहाँ पे स्कूल में, और उसमें वो पूछते हैं कि हु आर यू, तो कहते हैं कि आपको पता है कि आप कौन हैं। तो हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। As in the beginning of this video I was telling you that we do not, whenever somebody asks us कि okay अपने बारे में कुछ बताइए, tell about yourself, तो आप जब छोटे होते हैं तो आप अपने बारे में माई सेल्फ पे आप बताते रहते हो दैट आई एम ए गर्ल और आई एम ए बॉय, आई एम सच एंड सच ईयर्स ओल्ड, आई रीड इन दिस स्कूल, आई हैव 2 brothers and 1 sister, माई फादर इज अ डॉक्टर। तो आप क्या करें, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, यू आर टेलिंग अबाउट ऑल अदर थिंग्स। पर जब आपसे कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूअर आस्क्स अस ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो यू हैव टू टेल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपको ये नहीं बताना होता कि आपके फादर का नाम क्या है, आपके फादर क्या काम करते हैं, मदर का नाम क्या है। यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आपको बताना है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं और आप उन इंटरेस्ट को कैसे परस्यू करते हो, आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, आपकी क्या डिसलाइकिंग्स हैं। आपसे अगर कहा जाए ओके टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड राइट 3 likes and 3 dislikes, तो आप उसके बारे में भी सोचते हो। यू टेक टाइम दैट मैडम स्टिल इट इज़ नॉट कंप्लीट। आप 5 मिनट हो गए, आप कह रहे हो मैडम अभी लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से पूछते हो ओके टेल मी व्हाट यू आर राइटिंग। क्यों? आपकी पर्सनैलिटी है। आपको इतने, सपोज यू आर 17 years old, तो 17 साल में आपको ये भी नहीं पता लगा कि आपको 3 चीज़ें कौन सी नापसंद है, क्योंकि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते जा रहे हैं। यू आर बॉर्न, यू आर इम्पॉर्टेंट। आपको अपने बारे में भी पता लगना चाहिए। जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को समझने ही नहीं चाहते कि हम क्या चाहते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हर समय वो डेथ का तो थ्रेटन होता ही है। Everybody who is born is going to die one day, but before death have we done something concrete? कुछ हमने किया अच्छा, कुछ हमने अपने लिए अच्छा किया। So this is also very much important, because sometimes what happens is कि इतने educated लोग होते हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, और कभी कभी एक illiterate person होता है वो भी इस चीज़ को खूब अच्छी तरीके से समझ लेता है। तो हमें इन चीज़ों पे बेटा ध्यान देना है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। एंड द लास्ट स्टैंजा इज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। तो अर्थ हमें बताती है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अर्थ इज पर्सोनिफाइड, अर्थ का पर्सोनिफिकेशन हुआ है, मानवीकरण हुआ है। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें बताती है एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आप देखेंगे बिल्कुल बंजर ज़मीन है, बिल्कुल अनफर्टाइल ज़मीन है, एंड ऑल ऑफ ए सडन यू सी अ ग्रास शूटिंग आउट फ्रॉम देयर एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वहाँ से कुछ ग्रो करता है। तो वो बता रहे हैं कि कभी ऐसे, जो हम आपको कह रहे हैं, आपको इसको डेथ से नहीं कनेक्ट करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप चुप रहेंगे, जैसे अर्थ आपको सिखाती है, अर्थ बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग आपको सिखा रही है दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड,
जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो कहीं से कोई एक शूट, कोई एक घास, कोई एक पत्ती निकलती है जिससे पता लगता है कि नहीं, नेचर इज़ एट वर्क। साइलेंट प्रोडक्टिविटी है नेचर की, शोर मचा नहीं रही है वो, चुपचाप उसमें से कुछ निकलता है और ग्रो करता है और आप सब उस चीज़ को एडमायर करते हैं, उस ग्रीन लीफ को एडमायर करते हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। सो now I'll count up to 12 and you keep quiet and I'll go। और पोएट क्या कह रहे हैं, नाउ अब अगेन मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया है कि 12 तक हम काउंट करेंगे, नाउ विल काउंट टू 12। अब वो कह रहे हैं नाउ आई एम गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद द सेम मैसेज दैट वी शुड कीप क्वाइट फॉर अ सेकेंड or for some moments, and we should think about love, respect, mutual brotherhood, peace and harmony that is very essential in this mundane world. So students, this is the explanation of this poem. I hope all of you must have understood the poem. Thank you.